بات کریں گے یوم پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ 1940 تجدید عہد وفا کا دن ہے، جب مسلمانوں نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا اور پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ دن ہمیں ہمارے قائدین کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جن کی محنت اور عزم نے پاکستان کو حقیقت بنایا۔ یہ دن وطن پر جان نثار کرنے والوں کا گواہ ہے، جنہوں نے آزادی کے راہ میں اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ یوم پاکستان اس عہد کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں اور دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شامل کریں۔ یہ دن ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے وطن کو عالمی سطح پر عزت اور مقام دلائیں اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں۔ سیاسی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف تمام صوبوں کی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ 23 مارچ کو آزاد وطن کے لیے قرارداد پیش کی گئی، بدقسمتی سے اس وقت کوئی آزاد نہیں ہے۔ میڈیا کو پی کے ایکٹ کے تحت بند کر دیا جاتا ہے۔ تمام صوبوں میں حالات خراب ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، جن کا مینڈیٹ ہے انہیں دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی پوری تیاری تھی، اسپیکر کو اجازت کے لیے خط بھی لکھا گیا جو منظور نہ کیا گیا، جس پر احتجاجاً ہم نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ اپوزیشن کی ہماری ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ 1940 کو پاکستان کے بنانے کی قرارداد جو اس وقت آپ کا مینار پاکستان ہے، اس جگہ پہ قرارداد پیش ہوئی تھی۔ بدقسمتی کے ساتھ اس انسٹالڈ رجیم نے وہ آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر دی ہیں۔ اس وقت نہ میڈیا آزاد ہے نہ لوگ آزاد ہیں۔ جو کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو پیکا ایکٹ کے تحت یا باقی قوانین کے تحت جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو صحیح جمہوری قوتیں ہیں ان کو مینڈیٹ دیا جائے، اور کہ ہم نے اپنی تیاری جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کی ہماری پوری تیاری تھی، اور میں نے خط بحیثیت اپوزیشن لیڈر لکھا بھی تھا اسپیکر کو کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کے صبح ہی، اس میٹنگ کی صبح پہ وہ کرا دیں۔ وہ نہیں ہوا، یا لہٰذا ہم لوگوں نے اس میٹنگ سے بائیکاٹ کیا۔ تو دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ مجھ سے ماضی کا حساب مانگنے کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کہے لیکن نہیں آئے۔ مجھے صرف خط نہیں چاہیے، وہ پیسے منتقل ہونے چاہیے۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ کے میئرز کو بھی کہوں گا کہ گورنر سندھ سے پیسے لائیں۔ ہم تو گورنر سندھ کو لوگوں کی بہترین خدمت کا موقع دے رہے ہیں۔ 9 مئی کرنے والوں نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی۔ ہم اقتدار کے لیے ریاست کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ جی ڈی اے نے کالا باغ ڈیم کے حق میں مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی عوام کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کیا۔ نئی نہروں پر کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ خبر دیں آپ کو، مسلم لیگ نون کے دور میں بنائی گئی کشمیر ریلوے پرائیویٹ لمیٹڈ مقصد کے حصول کے بغیر پی ٹی آئی دور حکومت میں بند ہونے کا انکشاف۔ 5.5 سال بعد 6 کروڑ سے زائد اخراجات کے بعد کمپنی کو بند کر دیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق 67 ملین روپے کے اخراجات بغیر کسی واپسی یا مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے کیے گئے۔ 2014 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اسلام آباد مری مظفرآباد ریل لنک کے قیام کا حکم دیا۔ کمپنی ریل کوریڈور، اسٹیشن اور ٹرمینلز کی منصوبہ بندی، تعمیر، آپریٹنگ اور دیکھ بھال، ڈیپو، یارڈز اور دیگر ذیلی سہولیات کی دیکھ بھال کے لیے قائم کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی کی ملازمہ فائزہ یاسین کا شہری کو ویزا اور نوکری کا جھانسا دے کر 78 لاکھ روپے ہتھیانے کا یہ معاملہ ہے۔ اے بی این نیوز کی خبر پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا ایکشن۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی ملازمہ فائزہ یاسین کو برطرف کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فائزہ یاسین اسسٹنٹ سیکیورٹی کو نااہلی اور بد انتظامی کا مرتکب پایا گیا۔ سول سرونٹس رولز کے تحت ملازمہ فائزہ یاسین کو نوکری سے فارغ کیا گیا ہے۔ کینیڈا کے نومنتخب وزیر اعظم مارک کارنی نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ مارک کارنی کا قبل از وقت انتخابات 28 اپریل کو کرانے کا اعلان۔ کینیڈا میں شیڈیول کے مطابق انتخابات 20 اکتوبر کو ہونے تھے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ سب سے اہم خطرات میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم پر حکمرانی کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر منصفانہ ٹیرف اور تجارتی اقدامات کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی متوسط طبقے کے ٹیکس میں کٹوتی کی تجویز۔
कनाडा अमेरिका की तरफ से शुरू की गई तिजारती जंग जीत सकता है। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जोली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ जारी तिजारती जंग जीत सकता है। ये जंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा मुतादिद महसूलात की वजह से शुरू हुई। कहा कि हम अमेरिका के सबसे बड़े खरीदार हैं। हम अमेरिकी मसनूआत चीन, जापान, बरतानिया और फ्रांस से ज़्यादा खरीदते हैं। मेलानी जोली ने तस्लीम किया कि तिजारती महसूलात और कीमतों में इजाफे का मामला कैनेडियन आवाम के लिए एक अहम मसला है। मजीद कहा कि हम समझते हैं कि इस जंग को जीतने में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद खुद अमरीकी अवाम है, क्योंकि वही अपने कानून साजों को पैगाम दे सकते हैं। अमरीकी अवाम के दिल और दिमाग जीते जा सकते हैं, क्योंकि वही इस तिजारती जंग की कीमत अदा कर रहे हैं और उनकी मुलाजमतें भी खतरे में हैं। बात करेंगे बढ़ते जराइम की। इस्लामाबाद में डकैती की वारदातों में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरी परेशान है, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में गुज़िश्ता एक माह के दौरान डकैती की कई वारदातें रूनुमा हो चुकी हैं। शहरी बैंक से यूं ही रकम लेकर निकलते हैं, डकैतों के हत्थे चढ़ जाते हैं। कुछ वारदातों में गोलियां भी चल गईं। सीसीटीवी फुटेज और सेफ सिटी कैमरास भी किसी काम ना आ सके। बैंक इंतजामिया का कहना है हमारी जिम्मेदारी बैंक की चार दीवारी के अंदर है, जबकि मुखबर मुबैना तौर पर अंदर ही से मालूमात हासिल करते हैं। इतने इकदामात और कैमरों के बावजूद डकैतियां हो रही हैं। इस वक्त हालात ऐसे हो चुके हैं, हम तो डिसहार्ट हो चुके हैं। यकीन करें कि हर आए रोज़ कोई ना कोई वारदात होती है। कोई एटीएम से पैसे निकालता है तो उसे छीन लेते हैं, बैंक से निकालता है तो उसे छीन लेते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, नाके भी मौजूद हैं। शहरी कहते हैं बैंक से ट्रांजैक्शन जान जोखों का काम बन गया है। बैंक इंतजामिया को पार्किंग तक सिक्योरिटी फ्राहम करनी चाहिए। हमें बहुत डर लगता है, बाहर जब आओ तो ना कोई पुलिस होता है ना कुछ होता है, तो ऐसा तो नहीं होता। ज़्यादा लोग एटीएम से पैसे निकाल के निकले और उनको पकड़ लिया जाता है, मोबाइल और ऐसे स्नैचिंग होती है। ये बैंक से बाहर निकलते ही यहाँ पे अक्सर लोगों के ऊपर गन पॉइंट के साथ लूट लिया जाता है बैंक। वो गरीब आवाम किधर जाए, यहाँ के इंतजामिया को सोचना चाहिए। शहरी और ताजर कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस का गश्त अपारा मार्केट में निहायत गैर मौसर है। पुलिस को हिकमत अमली बेहतर करनी चाहिए। बैंक इंतजामिया का कहना है हमारी जिम्मेदारी बैंक की हदूद के अंदर की है, जबकि शहरी कहते हैं बढ़ती वारदातों के पेश नज़र बैंक इंतजामिया को पार्किंग तक सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स कटौती का फैसला। महकमा एक्साइज ने महकमा सेहत को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले के मुताबिक महकमा सेहत के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहों से पेशा वाराना टैक्स कटौती की जाएगी। डॉक्टर्स की तनख्वाहों से टैक्स की कटौती मुकर्ररा शरह के मुताबिक की जाएगी। डॉक्टर से टैक्स बकायाजात की वसूली की भी हिदायत। टैक्स कटौती के बाद कुल रकम का चेक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को अरसाल किया जाएगा। मैपको अफसरान के नाअहली अरबों रुपए के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। मैपको अफसरान करोड़ों माहाना मुराआत वसूल करते और रिकवरियां सिफर हैं। मैपको वफाकी और सूबाई इदारों से बिजली बिलों की मद में 12 अरब 99 करोड़ रुपए से जायद और 9 ऑपरेशन सर्कल्स में वफाकी इदारों के जिम्मे वाजिबुल अदा 1 अरब 28 करोड़ रिकवर करने में नाकाम हो गए। मैपको ने अदायगियां न करने वाले सरकारी इदारों की बिजली 24 मार्च को मुनक़ता करने की धमकी दे दी। और अब बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों की। ईद उल फितर पर नए कपड़ों की सिलाई मुश्किल तरीन मरहला समझा जाता है। दर्जी ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं। ऐसा ही रवैया मुल्तान के दर्जियों का देखने में आ रहा है। इस हवाले से आसिफ चावन की ये रिपोर्ट देखिए। ईद के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी दर्जियों के पास ऑर्डर्स की भरमार है। कुछ दर्जियों ने तो रमजान के वस्त में ही बुकिंग बंद कर दी थी, जबकि कुछ ने आखिरी अशरे में जाकर मजीद कपड़े लेना बंद किए। दर्जियों का कहना है कि ईद के लिए कपड़ों की तैयारी वक्त तलब काम है और गाहक आखिरी लम्हात में आकर फौरी सिलाई कराने की जिद करते हैं, जिससे वो दबाव का शिकार हो जाते हैं। हमने रमजान के आगाज में ही ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब हमारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। सर काम की पोजीशन बहुत ज़्यादा है, कारीगर भी रखे हुए हैं, फिर भी काम बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जो भी नवा कस्टमर उससे माजरत करनी पड़ रही है कि यार बराए मेहरबानी हमारे पास हाउसफुल है, काम कोई और ले जाएं। तनख्वाहदार तबके के लिए नए कपड़ों की तैयारी मुश्किल मरहला समझा जाता है। जब तनख्वाह मिलती है उस वक्त तक दर्जी ऑर्डर लेना बंद कर चुके होते हैं। मजबूरन ईद पुराने कपड़ों में गुजारना पड़ती है। हमारी तनख्वाह मिली है लेट, तो इस वजह से अब कपड़े हमने लेट खरीदे हैं, तो इन्होंने इनकार कर दिया। ये कहते हैं कि हमारा हाउस फुल है, तो जिस वजह से अब हमें मजबूरन जो ईद है वो
पुराने कपड़ों से करनी पड़ेगी। जहां आम लोग ईद के दिनों में खुशियां मनाते हैं, वहीं दर्जी आखिरी वक्त तक काम में मसरूफ नजर आते हैं ताकि ग्राहकों के आखिरी वक्त के ऑर्डर्स पूरे कर सकें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN न्यूज, मुल्तान। जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, न पाकिस्तान के लिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेना चाहिए। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि लड़ाई का खतरा है या नहीं, मजीद सोच विचार जरूरी है। जामिया हिकमत अमली नागुज़ीर है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए। अफगानिस्तान में 1 हफ्ता गुजारा, बातचीत के नताइज भी आए। उन्होंने कहा कि JUI के जनरल कौंसिल का इजलास अप्रैल में होगा, जिसमें मुस्तकबिल की पॉलिसी की मंजूरी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर अहम जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर तौकीर शाह और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले अबहाम को दूर करने की हिदायत करते हुए कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत करते हुए कहा कि जनरेशन कंपनीज के खात्मे के हवाले से तमाम तर कानूनी और दीगर उमूर जल्द अज जल्द तय किए जाएं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामिया और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। आलमी बैंक से पाकिस्तान के लिए इजाफी $70 मिलियन की मंजूरी का इम्कान है। फंडिंग FBR के नए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए इस्तेमाल होगी। ज़राए के मुताबिक इजाफी फंडिंग से टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने और गुर्बत कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP का तनासुब 10% तक बढ़ाने का हदफ है। टैक्स टू GDP का तनासुब 2035 तक 15% तक ले जाने का हदफ है। इजाफी फंडिंग से FBR के मंसूबे की मुद्दत 2027 तक बढ़ जाएगी। FBR के मंसूबे की कुल रकम $470 मिलियन हो जाएगी। कॉस्मेटिक और चीन के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी और सेहत के शोबे में शराकतदारी को मजबूत करने के पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक, रवायती अद्वियात और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन के राहें हमवार। चीनी साइंसदान डॉक्टर जन्मन लियू को तमगा कायद-ए-आज़म से भी नवाजा गया। पाक चीन मुश्तरका मंसूबा प्रोग्राम के तहत खलाई हालात में तिबी पौधों पर तहकीक जारी है। चीन ने पाकिस्तानी साइंसदानों के लिए 100 तहकीकी फेलोशिप्स की पेशकश की है। इस ताउन के तहत हर साल 10 पाकिस्तानी डॉक्टर्स को चीनी रवायती अद्वियात की तरबियत दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने चीनी रवायती अद्वियात पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स का आगाज किया। चीनी जामियात में पाकिस्तानी मुहक्किकीन की तरबियत से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। पाक अफगान जिरगे के नुमाइंदे वफ्द ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। बॉर्डर की बंदिश से कारोबारी और सनती शख्सियात के साथ आम लोगों को भी बेइंतहा मसाइल का सामना था। वफ्द ने तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए कोशिशों पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का शुक्रिया अदा किया। जिरगा अरकान का कहना था कि 25 दिनों से बॉर्डर बंद रहने की वजह से दोनों तरफ 6000 माल बरदार गाड़ियां खड़ी होने की बायस ताजिरों को भारी माली नुकसानात का सामना था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इस मौका पर कहना था कि ईद उल फितर के पेश नज़र तुरखम बॉर्डर का खोलना इंतहाई ज़रूरी था, जो कामयाबी इज्तमाई कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुई। तुरखम बॉर्डर से तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग में खैबर चैम्बर का किरदार काबिल तहसीन है। गवर्नर ने कहा कि खैबर चैम्बर समेत सूबे भर के ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए ताउन और कोशिशें जारी रखूंगा। जिरगा अरकान में ज़म-अज़लाह से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली उमायदीन, खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे शामिल थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतल्लिक डेडलाइन में तब्दीली का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। मैंने वफाक को मरासला अरसाल किया है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गवर्नर हाउस पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास में अपोजिशन जमातों का मौजूद होना जरूरी था। बानी चेयरमैन के लिए सियासी पनाह की कोशिश में इजलास में शरीक नहीं हुए। टारगेटेड ऑपरेशन काफी अरसे से जारी है।
जनूबी अजला की सूरत हाल ख़राब है, सिक्योरिटी सूरत हाल को ठीक करना होगा। उनका कहना था कि रियासत से बात करनी है। सूबे की जानिब से फॉरेन ऑफिस को कोई TOR नहीं दिए गए। मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान गए थे, उनका फॉलो अप नहीं हुआ। हमने अफगान बहन भाइयों को सालों साल पाला है। इस्लामाबाद के थाना I9 की हुदूद में 9 साला उमैर के लापता होने को 11 दिन बीत गए, मगर वर्षा की लाख कोशिशों के बावजूद उमैर का सुराग ना मिल सका। मदद के बजाय पुलिस भी वर्षा को परेशान करने लगी। तफसीलात अरशद शाद की रिपोर्ट में देखिए। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 11 दिन से लापता 9 साला उमैर की तलाश में लवाहिकीन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कबाड़ का काम करके बच्चों का पेट पालने वाले गुमशुदा उमैर के वालिद का कहना है कि अपनी फरियाद लेकर मकामी पुलिस थाने में गए, मगर वहां मौजूद पुलिस हुकाम ने हमारी एक ना सुनी। सुबह सारी टाइम मेरा बच्चा दही लेने के लिए गया, तो दही लेके वापस नहीं आया। 11 दिन हो गए। हम थाने में गए, वो FIR नहीं ले रहे, तो मेरा बच्चा गुम हो गया है, मुझे बच्चा नहीं मिल रहा। पुलिस वालों को आज भी हम गए, पुलिस वाले FIR ले नहीं रहे, कहते पुलिस केस है ही नहीं। 11 दिन हो गए। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਢੂੰਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 8-7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं कोई सुनता पे। बुरसा ने हुकाम बाला से गुमशुदा उमैर की तलाश में मदद की अपील की है। बेसरो सामानी में बेटे की जुदाई ने इस मजदूर शख्स के औसान खता कर दिए हैं। मोहम्मद आमिर ने हुकाम बाला से अपने लापता बेटे को फौरी तौर पर ढूंढने की अपील की है। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्तौर में सूबाई हुकूमत की जानिब से कोस्टर हादसे के लवाहिकीन में इमदादी रकम तकसीम। सूबाई वज़ीर दाखिला ने हादसे के शिकार अफराद के लवाहिकीन में 4 लाख रुपए फीकस तकसीम किए। 12 नवंबर को कोस्टर हादसे में 15 अफराद जामहक और दर्जन से जायद ताहाल लापता हैं। तो वहीं कराची में FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ मुजाहिद अकबर ने एक अनोखा नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। कराची और हैदराबाद में तैनात 10 इदारे के एहलकारों को सुबह बदर कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर समीना सदीकी, शाहिद सईद, इंस्पेक्टर नाजिया सलीम, सब इंस्पेक्टर्स खुरम इस्लाम, जुल्फकार अली सियाल, हेड कांस्टेबल मुनीर बचकानी और कांस्टेबल्स कम्बो खान, सरफराज हुसैन, राजा मुनीर और वकार अहमद कांजो शामिल हैं। तबादलों में डायरेक्टर जनरल से इजाज़त नहीं ली गई। ADG दफ्तर में तैनात अफसर ने तस्दीक की कि मज़कूरा एहलकारों को सजा के तौर पर सुबह बदर किया गया।